Good morning friends and welcome to the classes. Today we are here to discuss about the first chapter of grammar named sentence and its parts. As you know, whenever we translate the Hindi vakya into English, then it is necessary to know which type of sentence is that. After knowing, we can easily translate into English. If that is affirmative, negative, interrogative, imperative, optative or exclamatory sentence, then by using the structure of affirmative, negative, interrogative, imperative, optative or exclamatory sentence, we can easily translate into English. If we have to transform the affirmative sentence into interrogative, then by using the structure of interrogative sentence, we can easily transform that affirmative sentence into interrogative. If this video is well for you, like and share this video, subscribe this channel and don't forget to ring the bell icon. Let's listen. Sentence. The Hindi meaning of sentence is वाक्य. Definition: sentence is a group of words that make complete sense. यानी वाक्य शब्दों के ऐसे समूह होते हैं जो पूर्ण भाव व्यक्त करते हैं. Second definition: a group of words that make complete sense is called sentence. यानी शब्दों के ऐसे समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं. For example, Ram is a good student. A word, 2, 3, 4 and 5 words. ये group of words जो है complete sense दे रहा है. Therefore, we can say it a sentence. Clear? Second, student के नाम is. यहाँ भी group of words है, लेकिन complete sentence यानी complete sense नहीं दे रहा है. So we can't say a sentence. Kinds of sentence. According to the rules of class and sentences are divided into 3 parts. First, simple sentence. Second, compound sentence. And third, complex sentence. Clear? The Hindi meaning of simple sentence is वाक्य. Definition: the sentence in which a subject and a finite verb is called simple sentence. Very simple. The sentence in which a subject and a finite verb is called simple sentence. मतलब ऐसे sentence जिसमें एक subject और एक finite verb होता है उसे हम simple sentence कहते हैं. For example, he goes to school. यहाँ पे he एक subject है और goes finite verb है, so ये sentence simple sentence है. Clear? यहाँ भी देख सकते हैं. Example में you went to school. You is subject, went is finite verb, so it is simple sentence. Clear? Next, compound sentence. The Hindi meaning of compound sentence is संयुक्त वाक्य. The sentence which consists of two or more than two principal clauses is called compound sentence. मतलब कि ऐसे सेंटेंस जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लास से मिलकर बनता है उसे हम संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. यहाँ पे एक और कंडीशन है कि कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग होने वाले क्लास को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ते हैं. अब सवाल आया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है क्या? तो आप पहले से ही जानते हो कि conjunction is joining word. यानी by using conjunction we can join two or more than two words, sentences, phrases and clauses. यानी हम conjunction का यूज करके दो या दो से अधिक words को, sentence को, phrases को या फिर clauses को जोड़ते हैं. Clear? कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग होने वाले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? तो कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप लर्न कर लो तो आप आसानी से कंपाउंड सेंटेंस को पहचान सकते हो. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं लर्न कर लो. एंड, बट, और, येट, फॉर,
as well as either or, neither nor, not only, both and, but also, only then, therefore, no less than, otherwise, or else, still, while, whereas, nevertheless are called coordinate conjunctions. And whenever you find these words in sentence, it's called compound sentence. For example, he came here and did his work. He came here, एक sentence है. He did his work, दो sentence है. और इनको हम and यानी coordinate conjunction का यूज करके जोड़ रहे हैं. ये हमारा हो गया compound sentence. Clear? Second, complex sentence. The Hindi meaning of complex sentence is misled word. Definition: the sentence which consists of a principal class and one or more than subordinate class is called complex sentence. ऐसे सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बनता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. यहाँ भी एक कंडीशन होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग होने वाले क्लास को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ते हैं. अब सवाल है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते क्या है? तो जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कुछ वर्ड्स थे, सेम वैसे ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कुछ वर्ड्स हैं. इनको लर्न कर लो तो आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान कर सकते हो. वो वर्ड्स क्या है? तो एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दाउ, आल्दो, that, before, after, till, until, unless, whether, list, as if, in case, so that, as long as soon as, why, when, how, where, which, as though are called subordinate conjunction. यानी आप जहाँ कहीं भी इस वर्ड्स को पाते हो, इन वर्ड्स को पाते हो, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, no sooner did I reach the station than the train started. आप देख रहे हो इसमें एक प्रिंसिपल क्लास है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास है, और यहाँ पे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके इसको जोड़ रहे हैं. तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यानी सिंपल सा कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रयोग होने वाले क्लास को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके जोड़ते हैं. Clear? If you have any doubt, write in comment box. If you want to take a screenshot, you may take. Kinds of simple sentence. हमने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. Kinds of simple sentence. Simple sentence are divided into 5 parts. First, affirmative sentence. The meaning is chapter. वाक्य. Second, interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य. Imperative sentence. आदेश सूचक वाक्य. Optative sentence. इच्छा सूचक वाक्य. Exclamative sentence. विस्मयादि बोधक वाक्य. अब हमारा आइडिया बनता है assertive sentence. Assertive sentence definition: the sentence which expresses yes or no sense is called assertive sentence. I repeat again, sentence which expresses yes or no sense is called assertive sentence. Means ऐसे sentence जिसमें या तो हाँ का बोल होगा या फिर ना का, उसे हम assertive sentence कहते हैं. For example, he writes a letter. Second example, you are doctor. इन दोनों सेंटेंस में यस सेंस है. Second, she is not poor, I am not dishonest. और यहाँ पे not लगा हुआ है, इसका मतलब कि no सेंस है. और ये दोनों एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस के अंडर में ही आते हैं. क्लियर? असर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं.
फर्स्ट जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस। क्लियर? हम पहले ये जान चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी या तो यस आएगा या फिर नो आएगा, बस उसी को थोड़ा चेंजिंग कर देना है। अफर्मेटिव में द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ओनली यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें सिर्फ यस सेंस आता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल यू आर ब्रेव आई एम हॉनेस्ट, इसमें यस सेंस है, यू आर ब्रेव आप बहादुर हो, आई एम हॉनेस्ट मैं ईमानदार हूं, यस सेंस, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ओनली यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कि सिर्फ हां का बोध होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक? नेगेटिव सेंटेंस अब इसमें हो गया ओनली यस सेंस, इसमें क्या होगा ओनली नो सेंस। वेरी गुड। द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ओनली नो सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कि केवल नहीं का बोध होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल यू आर नॉट ब्रेव, ठीक है, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। क्लियर? आप बहादुर नहीं हो और मैं बेईमान नहीं हूं। इसमें नॉट में क्या है? एनओटी नॉट, इसका मतलब ये हो गया नो सेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? असर्टिव सेंटेंस का पार्ट हो गया। अगला हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी द सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, द सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आर यू हंग्री, इज इट डे, ठीक, व्हाट्स योर नेम एंड वेयर आर यू गोइंग। क्लियर? तो इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है जो यस और नो क्वेश्चन और सेकंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो अब सवाल आया कि यस और नो क्वेश्चन डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता क्या है? तो बस सिंपल से याद रखना, एक्सियली वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन को हम यस और नो क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि इनका आंसर हमें यस और नो से मिल जाता है। ठीक? ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आर यू मैड, आंसर मी, तो आप कहोगे नो, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नो से मिलेगा। आर यू हंग्री, नो, यस, इन क्वेश्चन का आंसर मुझे यस और नो से मिल जा रहा है, तो ये हमारा हो गया यस और नो क्वेश्चन। क्लियर? अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन वो होता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर हमें यस और नो से नहीं बल्कि किसी सेंटेंस से मिले, वो होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ठीक? फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम, तो आप मुझे बताओगे माय नेम इज विक्रम, माय नेम इज आदित्य, माय नेम इज रिया, माय नेम इज लकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे यस और नो से नहीं मिला, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक सेंटेंस से मिला, तो ये हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया। यह भी कह सकते हैं कि यस और नो क्वेश्चन एक्चुअली वर्ब इज आर वाज वेयर डू डज हैज हैड शैल विल शुड मे माइट कैन कुड इट इज, इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस को हम यस और नो क्वेश्चन कह सकते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है ना, उसे हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, व्हिच, इनसे शुरू होने वाले क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो से नहीं बल्कि एक सेंटेंस से देते हैं। क्लियर? इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Now we shall discuss about imperative, optative and exclamatory sentences. Imperative sentence, the sentence which expresses order, request, advice,
कंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इतना याद रखना, इन दिस सेंटेंस वी फाइंड यू इज ऑलवेज अंडरस्टूड, यानी इस सेंटेंस में हम पाते हैं कि सेकंड पर्सन यानी यू हमेशा अंडरस्टूड यानी छिपा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन द विंडो, प्लीज गिव मी ए ग्लास वाटर। तो आप देख सकते हो कि इन सभी में यू अंडरस्टूड है। कैसे? आई सेड स्टैंड अप, जब मैं स्टैंड अप कहूंगा फर्स्ट पर्सन यानी आई, और किसको बोलूंगा? सेकंड पर्सन यानी आपको। तो मैं ऐसा तो बोल नहीं रहा हूं यू स्टैंड अप, मैं ये बोल रहा हूं कि स्टैंड अप, लेकिन इसमें यू छिपा हुआ है क्योंकि आप खड़े हो जा रहे हैं। सिट डाउन, आप बैठ गए, है कि नहीं? तो इसमें ये होता है कि फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन किससे बोलता है? तो सेकंड पर्सन से बोलता है, ठीक है। क्लोज द विंडो, तो मैंने किससे कहा? आपसे कहा। तो आपका इंग्लिश क्या होता है? यू, यानी यू इसमें अंडरस्टूड है। मैं ये भी कह सकता हूँ यू क्लोज द विंडो, या फिर ऐसा भी कह सकता हूँ कि क्लोज द विंडो। दोनों का सेंस एक ही होता है, तो इस सेंटेंस में यू हमारा अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। और इतना याद रखना, इसके लास्ट में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। क्लियर? ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर। ऐसे सेंटेंस जिसमें इच्छा का बोध होता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, आप निजुक्त है। तो इसमें क्या, ये मेरी इच्छा है ना, ये मेरी इच्छा है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, आप पुनर्युद्ध है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं अपनी इच्छा को व्यतीत कर रहा हूँ, और ये सेंटेंस अक्सर मे से शुरू होता है। कभी कभी इसमें मे को भी अंडरस्टूड कर दिया जाता है, जैसे गॉड ब्लेस यू, ठीक। और इसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। एट द एंड ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ मानसिक भावनाओं को हम उत्पन्न करते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? फॉर एग्जांपल, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो यहाँ पे क्या है? हुर्रा, मैं अपने एक्सक्लेमेट जॉय, मैं अपनी खुशी को व्यतीत कर रहा हूँ, ये अपनी मेरी मानसिकता है, मैं अपनी खुशी को व्यतीत कर रहा हूँ। सेकंड, अल्लाह आई एम गुड, मैं बर्बाद हूँ, ठीक। तो इसमें क्या है? मैं अपने दुख को, एक्सक्लेम विद सॉरो, मैं अपने दुख को व्यतीत कर रहा हूँ। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट टू रिलेटेड दिस वीडियो, राइट इन कमेंट बॉक्स। क्लियर? इफ दिस वीडियो इज वेल फॉर यू, like and share this video, subscribe this channel and ring the bell icon. After some time we shall discuss about the part of sentence: subject, predicate, subject's part, the part of subject, the part of predicate. After this video we shall discuss about the second chapter of grammar. If you want